Assalamualaikum beta. This is my next video on biological molecule, and today I'm going to solve the questions of biological molecule with you of October November session 2022. I'm sharing the worksheet with you. I'll be solving the MCQs, and then we will be doing structured questions as well. So let's start with the share the screen with you. Okay, now you can see the questions. You can see the screen, the worksheet on the screen. Let's start doing it. Now this first question. Okay. Now this is the first question. It says the diagram shows the results of a number of sets on a solution of biochemicals. Okay, you can see Benedict, it turned blue. Non-reducing sugar test, you got yellow. Iodine test, blue-black coloration, and Biuret test, blue. Benedict test, if it is giving you blue coloration, means that reducing sugars are absent. You know that Benedict test is done for the to check the presence and absence of reducing sugar. So if the reducing sugars are present, then you will get a range of colors starting from green, yellow, brown, orangish brown, yellowish brown, orangish brown, orange, and then finally red precipitates, depending on the concentration of reducing sugar. If the concentration is too low, then you get a green sort of color. It means that the color of Benedict is blue. That change, if it changes from blue to bluish green and then green, then that bluish green is the sign of the presence of reducing sugar. There are 5 reducing sugars. That's the 3 monosaccharides which are in your syllabus, which is glucose, galactose, fructose, and the 2 disaccharides in your syllabus, that is lactose and maltose. The third disaccharide which is in your syllabus, that is sucrose, is a non-reducing sugar because it cannot reduce this Benedict solution and cannot change its color from blue to a range of colors which are actually showing the presence of reducing sugars. So if you get bluish green, and then you get yellowish green, yellowish brown, orangish brown, and then if you get a red coloration, तो ये सारे जो हैं ये show करते हैं कि yes, reducing sugar is present. And depending on the concentration, अगर बहुत low concentration है तो you'll get a blue green color. If there is a little higher concentration of glucose, then you get a blue color, sorry, a green coloration. Then different colors like yellow, yellowish brown, orangish brown, orange, bright orange, एंड ब्रिक रेड या ब्राइट रेड कलरेशन. तो ये सारे बताते हैं कलर्स की जी रिड्यूसिंग शुगर जो हमारे पास 5 हैं सिलेबस में, वो उनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं थोड़ा सा इन स्लाइटली डिफरेंट मैनर that what you do that if I ask you that it's a sugar and I ask you that which type of sugar is this, so what are you going to do? You are going to find out that if it's a reducing or a non-reducing sugar, so you will directly do the Benedict test on it. For Benedict test, you put equal concentration of the sample and the Benedict solution, and you heat it
indirectly in a water bath, and the temperature of the water bath should be 80 to 90 degrees Celsius. It should be about, you can say, boiling water. अगर boil भी हो जाता है तो it's fine. तो उसमें आप अपनी टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सैंपल जो आपका है वो डाला हुआ होता है, आप उसको डायरेक्टली हीट करते हो. if it gives you color change from blue to green and then the range of color which I've told you, so then you will say that your reducing sugar is present. But if it doesn't give you the any coloration, remains blue, and I keep on insisting that beta no, it is a sugar. So what are you going to do? You will say that yes, it's not a non-reducing, it's not a reducing sugar, but let me try for the non-reducing one, that is sucrose. फिर आप क्या करते हो? You take the same volume of the sample and you will add, if you are taking, usually and commonly you use 2 centimeter cube of the solution, तो आप वो लेते हो और उसमें 1 centimeter cube आप डाल लेते हो dilute HCl, और उसको डाल के आप उसको उसी तरह थोड़ा सा हीट अप करते हो बॉइलिंग वाटर, वही जो आपका वाटर बाथ है उसमें. जब आप उसको हीट अप करते हो तो उसका क्या होता है कि उसमें बबल्स बनते हैं. बबल इज द साइन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द आपकी जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है, यानी वो हाइड्रोलाइज हो गई है बैक इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. अब फ्रुक्टोज ग्लूकोज तो दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. तो अब आपके पास ये जो सैंपल है आप इसका बेनेडिक्ट टेस्ट कर लेते हो, लेकिन बेनेडिक्ट सोल्यूशन का ये होता है कि इट डजंट वर्क इन एसिडिक कंडीशंस. द कंडीशंस शुड बी न्यूट्रल फॉर इट. सो आप क्या करते हो, यानी सैंपल शुड बी न्यूट्रल. तो आप उसमें क्या करते हो कि आप उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल, तो कोई भी एल्कली डालते हो थोड़ा सा, बिल्कुल आप अपने स्पैचुला में हाफ ऑफ स्पैचुला लेते हो और डाल लेते हो आफ्टर लेटिंग इट कूल डाउन, यानी बिल्कुल गरम गरम एसिड और सैंपल मिक्सचर में नहीं डालते, थोड़ा सा उसको ठंडा होने देते हो जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, एंड देन आप उसमें डालते हो अपना एल्कली, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. और फिर आप उसको उसके अंदर वही इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट डाल के फिर से वही बेनेडिक्ट टेस्ट करते हो, यानी हीट करते हो वाटर बाथ में, तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स या कोई भी कलर की आपके पास चेंज आ जाती है. तो दैट्स द साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जी इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. तो नॉर्मली आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, आपको ये एसिड और एल्कली ट्रीटमेंट करना पड़ता है. अब यहाँ वही सब हुआ है कि आपने बेनेडिक्ट टेस्ट इसमें डाल सॉल्यूशन डाला, ब्लू आ गया, इसका मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो आपकी एब्सेंट है. सॉरी सेइंग दिस, रिड्यूसिंग शुगर आपकी एब्सेंट है. इस पहले से तो आपको ये पता चल गया दैट रिड्यूसिंग शुगर इज एब्सेंट. ठीक है. दूसरा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट जो है वो येलो आया है. इसका मतलब है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ही सही, बट या माइल्ड सी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट. ठीक है, इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, दैट इज सुक्रोज. ठीक है, तो जिसमें वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस की बात कर रहा है आप उसको अंडरलाइन कर लें कि नॉन, ये दोनों तो फिर सिरे से ही गए, क्योंकि वो कह रहे इसमें कह रहे रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, तो दैट्स रॉन्ग, और इसमें कह रहे स्टार्च इज ओनली प्रेजेंट, तो दैट इज रॉन्ग. ये दोनों तो यहीं पे ही आपके गलत हो गए, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टार्च तो नहीं हो सकती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी प्रेजेंट है, और जिसमें वो कह रहे रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है वो भी गलत, क्योंकि वो एब्सेंट है. अगला आपका है आयोडीन टेस्ट विच वी डू फॉर द टू चेक द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्च, एंड इफ इट गिव यू ब्लू ब्लैक कलरेशन इट मींस स्टार्च इज प्रेजेंट. तो इस वाले में आपके जो भी सॉल्यूशन मिक्सचर आपको दिया है, इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है, स्टार्च भी प्रेजेंट है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी प्रेजेंट है. तो आपके पास यहाँ पर स्टार्च है, लेकिन यहाँ इसका कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है रिड्यूसिंग शुगर, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे. और यहाँ पर आपका स्टार्च जो है वो ओनली स्टार्च कह रहा है, तो वो भी कंसीडर नहीं करेंगे. जिसमें वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर और स्टार्च कह रहा है, दैट सीम्स टू बी करेक्ट. अभी हम प्रोटीन का भी कंफर्म कर लेते हैं. बायोरेट टेस्ट जो कि आपको ब्लू कलरेशन दे रहा है, इट मींस इट्स अ नेगेटिव टेस्ट. फॉर द बायोरेट टेस्ट इज डन फॉर द टू चेक द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्रोटीन. आप बायोरेट सॉल्यूशन डालते हो अपने सैंपल में. बायोरेट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दोनों का 1 सेंटीमीटर क्यूब आप ले लो तो आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बायोरेट सॉल्यूशन बन जाता है. उसको आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल में डालो. इफ द कलर चेंजेस टू पर्पल वॉयलेट देन यू से दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट. इफ इट रिमेन्स ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू होता है, तो इट मीन्स प्रोटीन्स आर एब्सेंट. तो आपका ये जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट हो गई. ठीक है, तो ये आपकी प्रोटीन एब्सेंट है, तो आपका ऑप्शन ए
इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द, ठीक है, ए आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, विच डायग्राम शो द रिंग फॉर्म ऑफ बीटा ग्लूकोज। बेटा बीटा ग्लूकोज की पहली निशानी है उसके कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल एंड दैट्स अबव द रिंग, हमेशा अबव द रिंग होता है कार्बन नंबर 1 का। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th कार्बन और 6th कार्बन आउट ऑफ द रिंग इन केस ऑफ ग्लूकोज। अगर तो ये कार्बन नंबर 1 की हाइड्रोक्सिल बिलो द रिंग होती तो अल्फा ग्लूकोज होता है, फिर अबव द रिंग इट्स बीटा ग्लूकोज। तो बाय नाउ दिस सीम्स टू बी बीटा ग्लूकोज, बिकॉज बाकी सबके केस में अगर आप देखें तो सब में हाइड्रोक्सिल इज बिलो, ठीक है। रेस्ट देयर आर डिफरेंट थिंग्स एज वेल। अब इसमें दोनों में ये साथ में हाइड्रोक्सिल है, दैट्स रॉन्ग। इसमें दोनों में साथ में हाइड्रोजन है, दैट इज रॉन्ग। ये आपको पता है कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सिल होता है, कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोजन होता है। तो जैसे इसमें है, लेकिन इसकी ये वाली चीज गलत है तो इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये दोनों तो बिल्कुल सीधे से गलत है, सी एंड डी। सो द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर ऑल रॉन्ग एंड ए इज करेक्ट। Which row correctly matches the example with the type of molecule? Disaccharide. अब इनमें से कौन कौन सा disaccharide है? It's a polysaccharide, it's a monosaccharide, it is a disaccharide, it's a disaccharide. So ये दोनों तो सिरे से गलत। हम आगे आगे दो देखते हैं। Macromolecules. Macromolecules, which are the large ones, large molecules. So glycogen is a macromolecule, hemoglobin is a macromolecule, ribonucleic acid, which is RNA is a macromolecule, and cellulose. तो ये तो सारे सही हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों पहले ही गलत हो चुके हैं तो हम इन दोनों को भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम इन दो के साथ आगे चलते हैं। मोनोमर, अब ये वाली ऑप्शन इनको नहीं हम देख रहे हैं, हम इनको देखते हैं। इनमें से आप साफ देख लें कि सुक्रोज जो है वो एक डायमर है, इट्स नॉट अ मोनोमर। फ्रुक्टोज इज अ मोनोमर। और पॉलीमर, ये दोनों पॉलीमर्स हैं जिसमें कि आपका ऑफ कोर्स अब हम वी विल गो फॉर डी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज गलत हो चुकी है, तो वी विल गो विद डी, दैट इज कोलेजन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The enzyme alpha amylase hydrolyzes amylopectin, but it is not able to hydrolyze some of its glycosidic bonds, ठीक है। ये एक एंजाइम है अल्फा एमिलेज जो कि एमिलोपेक्टिन को ब्रेक कर रहा है, बट इट्स नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज सम ऑफ इट्स, कुछ उसके बॉन्ड्स नहीं ब्रेक कर रहा। अब कौन से कर रहा है और कौन से नहीं, ये इट्स बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। सो इफ इट ओनली हाइड्रोलाइजेस 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। पहली बात है कि सिर्फ 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब 1,6 नहीं कर रहा। तो एमिलोपेक्टिन में जो 1,4 है वो तो ब्रेक करेगा, 1,6 नहीं करेगा। इट्स नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज द लास्ट बॉन्ड ऑफ द चेन, आखिरी बॉन्ड वो ब्रेक नहीं कर सकता। इट्स यानी 1,4 भी है लेकिन अगर लास्ट है तो वो नहीं कर सकता। It's not able to hydrolyze the bonds in a chain of 3 units attached by, अब ये थोड़ी और तलब सी स्टेटमेंट है, you need to concentrate. It's not able to hydrolyze the bonds in a chain of 3 units. 3 units की एक चेन है, जैसे कि हमें सामने नजर आ रही है, 3 units 1 2 3 attached by a 1,6-glycosidic bond to another chain. और यहाँ पर आप देखें कि ये जो ब्रांच आपको बनती हुई नजर आ रही है, wherever it is a branch, that's always with the help of the 1,6-glycosidic बॉन्ड, ठीक है। ब्रांच 1,6-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनती है, तो ये जो ब्रांच बन रही है 1,6-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बन रही है। और ये आपके पास एक, यानी कि ये 1,6 तो वैसे ही ब्रेक नहीं कर सकता, जैसे कि हमें इससे पता चल रहा है इट ओनली, तो ये बी भी आपका नहीं होगा क्योंकि 1,6 है। और इट इज नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज द लास्ट बॉन्ड ऑफ द चेन, तो आप ये देखेंगे लास्ट में बॉन्ड बना हुआ है डी, ये भी ब्रेक नहीं होगा। एंड इट्स नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज द बॉन्ड्स इन ए चेन ऑफ 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स की एक चेन है जिसके अंदर जो भी बॉन्ड्स है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, अटैच्ड बाय अ 1,6-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू अनदर चेन। तो यानी इस 3 यूनिट की चेन में भी ये कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता। तो which glycosidic bond can be hydrolyzed by this alpha amylase? Which one is left only? That is C. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल एक्स इज ए लिपिड। मॉलिक्यूल एक्स आपके पास लिपिड है जो कि आपको पता चल रहा है कि ये 3 कार्बन और ये इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल है इसके साथ। तो ये आपके पास जो है ना इट्स लाइक ग्लिसरोल, और ये जो है ना ये इसमें COC डबल बॉन्ड O, तो ये जो आपके पास बना हुआ है इसमें ये एस्टर बॉन्ड है, COC डबल बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड होता है ना, ठीक है। ये एस्टर बॉन्ड है, तो ये आपका एस्टर बॉन्ड है। और ये आपको नजर आ रही है एक हाइड्रोकार्बन चेन मींस के फैटी एसिड, ठीक है। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल एक्स है जो कि वो कह रहा है कि कोई लिपिड है।
Which row is correct for molecule X and a triglyceride? Now we are comparing this molecule X with a triglyceride. Let's see how are we comparing. Molecule X contains one unsaturated fatty acid. Molecule X contains one unsaturated fatty acid. देखो बेटा ये बात तो यही गलत होगी क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसमें कोई unsaturated fatty acid नहीं है. Unsaturated fatty acid means having a double bond, and we can see there is no double bond over here. कोई double bond नहीं है, तो we will not move forward. And हमें पता लग गया कि ये आपका ऑप्शन ए जो है ये तो गलत है. No ester bond, 3 ester bonds. So do you think that there is no ester bond? This is ester bond over here. तो हम इसको भी ऑप्शन में फर्दर नहीं डिटेल में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो एस्टर बॉन्ड हमें नजर आ रहा है. 1 फैटी एसिड 3 फैटी एसिड, दिस सीम्स टू बी करेक्ट क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये एक फैटी एसिड पूरी आपकी जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, ये बॉन्ड और OH होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हेड है और एक फैटी एसिड है. और ट्राइग्लिसराइड्स में आपको पता है 3 फैटी एसिड चेन्स होती हैं. इट सीम्स टू बी सी. लेट्स सी. इसमें वो कह रहे हैं 2 फैटी एसिड थी, तो ये यहाँ पर गलत हो गया. 2 फैटी एसिड्स तो है ही नहीं उसमें, तो आपके पास साफ नजर आ रहा है एक ही फैटी एसिड. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Bread contains a mixture of polypeptides known as gluten. Two of the polypeptides found in gluten are glutenin and gliadin. ठीक है, अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड्स है. मींस इट्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसमें कि एक ग्लूटेनिन है, ग्लूटेन के अंदर और एक ग्लाइडेन है. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन? बट वो ये कह रहा है कि इसमें से टर्शियरी स्ट्रक्चर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एक्चुअली तो ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है यही बता रही है कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. लेट्स सी कि इसमें से टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन सा बता रहा है. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन. तो बेटा ये वो कह रहा है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड है ग्लूटेनिन, दूसरी ग्लाइडिन, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं. मींस कि दो चेन्स का कनेक्शन वो बता रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड. इट मींस कि दैट्स नॉट टर्शियरी क्योंकि टर्शियरी में एक ही चेन होती है. टर्शियरी स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन हैज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन. तो यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन में दो चेन्स आ गई कि दो हैं और उनका आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है. तो इट डजंट डिस्क्राइब टर्शियरी, इट डिस्क्राइब क्वाटरनरी लेवल ऑफ description. So that's wrong. A large portion of amino acid in gliadin are glutamine. तो ये जो है ना ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो ग्लाइडिन है जो उसकी एक पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर जो मैक्सिमम अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिन. तो ये उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है और उसके अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा है. तो दैट्स अगेन नॉट टर्शियरी लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन. अल्फा हेलिकल सेक्शन, अल्फा हेलिकल से ही समझ में आ गई कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है. अल्फा हेलिकल सेक्शंस आर फाउंड इन, तो दोनों में अल्फा हेलिकल है तो ये सेकेंडरी की डिस्क्रिप्शन है. और बता भी दोनों चेन की बात कर रहा है तो वो क्वाटरनरी लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है कि दोनों में क्वाटरनरी और सेकेंडरी की दोनों में अल्फा हेलिकल के पोर्शन नजर आ रहे हैं, अल्फा हेलिसेस नजर आ रहे हैं. अमाइनो एसिड्स विद हाइड्रो, एक्चुअली तो एक ही ऑप्शन आपके पास रह गई है अब. ठीक है, तो उसे एक ऑप्शन को ही देखते हैं. अमाइनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स आर फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ ग्लूटेनिन. तो आपको पता है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें ग्लोब्यूल फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें कि जो अमाइनो एसिड जिनकी हाइड्रोफोबिक आर चेन्स होती है वो सेंटर में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं इस तरह से सारे. और जो हाइड्रोफिलिक वाले होते हैं दे सराउंड द boundaries, the surroundings of the globular structure or the globule so that they can interact with the polar environments. So this description is of tertiary level, that amino acids with hydrophobic R groups are found on the inside of it which are compact inside. ठीक है, अंदर की साइड में है वो. The table shows the observation recorded from test of for biological molecule on 4 samples A, B, C, D. Which conclusion is correct? अब आप देखिए बेनेडिक्ट आपके पास ब्लू आया है, बायोरेट ब्लू आया है, यानी कि ना उसमें रिड्यूसिंग शुगर है ना उसमें प्रोटीन्स हैं और स्टार्च उसमें कंटेन स्टार्च ओनली. ये तो मुझे ए ही करेक्ट लग रहा है बट हम बाकी ऑप्शंस भी जरूर चेक करते हैं. बेनेडिक्ट ब्लू है, बायोरेट पर्पल आ रहा है, मींस कि उसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन ये ब्लू है जबकि वो कह रहा है कि इट कंटेन्स रिड्यूसिंग शुगर ओनली. तो दैट्स रॉन्ग क्योंकि वो तो एब्सेंट है. बेनेडिक्ट ग्रीन आ रहा है मींस रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. बायोरेट ब्लू आ रहा है मींस प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है जबकि यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रोटीन्स हैं. ये भी गलत हो गया. और बेनेडिक्ट रेड आ रहा है मींस रिड्यूसिंग शुगर होगी. बायोरेट ब्लू आ रहा है मींस प्रोटीन नहीं है जबकि यहाँ वो प्रोटीन की प्रेजेंस को शो कर रहा है. तो ये भी गलत. ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया.
The diagram shows some biological molecule. Which biological molecule forms a polymer with a structural role in plants? अच्छा जी, स्ट्रक्चरल रोल प्लांट्स में आपने आपके सिलेबस में 3 पॉलीमर्स हैं, जिसमें एक है ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में होता है, एक आपका सेलुलोज है, एक स्टार्च है। स्टार्च जो है उसका आपको पता है कि एक फंक्शनल रोल है, इट्स डजंट मेक एनी स्ट्रक्चर, इट इज यूटिलाइज्ड, इट इज बीइंग स्टोर्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज एंड यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसका एक फंक्शन है। स्ट्रक्चरल रोल कौन सा पॉलीमर प्ले कर रहा है? सेल्यूलोज, ठीक है, जो कि सेल वॉल बना रहा है, सेलुलोज सेल वॉल। और सेलुलोज सेल वॉल में क्या होता है? बीटा ग्लूकोज होती है। और आपके पास ये तो आपको साफ पता चल रहा है कि दैट्स ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड है ना, एक नाइट्रोजनियस बेस है, ये आपके पास जो है वो राइबोज शुगर है, और ये आपके पास जो है उसके साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। तो सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि वरना तो इसमें फॉस्फेट होता। अच्छा, और ये आपके पास क्या ग्लिसरोल है। तो यही दो हैं जो कि आपको ग्लूकोज जो है, दोनों ग्लूकोज हैं, जिसमें कि ये हाइड्रोक्सिल इज बिलो द रिंग, सो इट्स अल्फा ग्लूकोज, एंड वी वांट बीटा ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज जो है इट्स मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज, सो इट्स अबव द रिंग एंड दैट इज बीटा ग्लूकोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Which molecule is a disaccharide and a reducing sugar? Disaccharide भी और reducing sugar भी, आपको बताया था 5 हैं reducing sugars आपकी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसेक्राइड्स हैं जो आपने किए हैं, फ्रुक्टोज। और डाइसेक्राइड्स में से आपके पास, आपने तो डाइसेक्राइड देखना है आपके, और जो रिड्यूसिंग शुगर भी हो तो वो है लैक्टोज एंड माल्टोज। तो ये जो माल्टोज और लैक्टोज हैं, डाइसेक्राइड्स भी, रिड्यूसिंग शुगर्स भी हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, बाकी सब में आप नहीं जाएंगे। सुक्रोज वैसे ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स है। द डायग्राम शोज बॉन्डिंग इन पार्ट ऑफ अ पॉलीसेक्राइड। अब ये आपके पास पॉलीसेक्राइड है, जिसमें कि वो ये आपके पास 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच बन रही है। विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज शोन एट पोजीशन एक्स, और क्वेश्चन भी वो वही आपसे कर रहा है, एक्स में कौन सा, मैंने बता दिया 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और क्योंकि हाइड्रोक्सिल नीचे है, ये ओ इधर से एच निकल गया, हाइड्रोक्सिल नीचे है, तो दैट इज हाइड्रोक्सिल इज बिलो द रिंग एंड इट्स बिलो इन कार्बन नंबर 1, हाइड्रोक्सिल इज बिलो द रिंग, सो दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब I'm going to discontinue over here. We'll soon share with another video on the rest of these questions, starting from 11 till 19. Total 19 questions I picked out from October 2022 of this topic, biological molecule. I will soon share the another video as well, in which I will be solving these rest of the questions, and then inshallah I'll share another video on cell membrane and transport, doing all the questions of cell membrane transport from October 2022, which is the latest paper. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bete, good luck. Allah Hafiz.